A morning devotion from Oil and Wine.
together, the one shall be taken and the other left. 2 men shall be in the field, the one shall be taken and the other left. And they answered and said unto him, Where, Lord? And he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together. We realize that in these portions of the scriptures, हम इन बात को समझ रहे हैं जब जो भाग हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा इस भाग में, here we also find certain scriptures, certain guidelines about his second coming as well. और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का कुछ उल्लेख कुछ आयतों में हम इधर पाते हैं. Yes. Some of the things that are mentioned here, we also would get to read in Matthew 24 and Mark 13 and Luke 21. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो बातें हमने इधर पढ़ा उसका कुछ बातें मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार 13वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय में भी हम देखना है. And those things were spoken at Jerusalem. और ये सारी बातें यरूशलेम में यीशु मसीह ने कहा था. But when we look into chapter 17 and verses 22 to 37, परंतु लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 22 से 37वां पद तक जब हम देखते हैं, you know, the Lord's instructions to his disciples were spoken as they were on the way to Jerusalem. और इधर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जो निर्देश दिए थे जब वे यरूशलेम की ओर आ रहे थे. You know, and wherein he says that he must suffer many things and be rejected of this generation. क्योंकि उन्होंने कहा और वह बहुत दुख उठाना है और इस युग के द्वारा तुच्छ जाना जाएगा. You know, so we see here there are several things mentioned in chapter 17 and some things are also relating to his second coming. और बहुत बातें 17वां अध्याय के अंदर उल्लेख किया गया है. Yes. कुछ बातें वो उसका द्वितीय आगमन का उल्लेख करता है. However, this passage is not just meant for or just for eschatology and the second coming of the Lord. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परंतु ये सारी भाग जो है यीशु मसीह का द्वितीय आगमन या अंतिम दिनों का वो घटनाओं का विवरण पूरा नहीं है, परंतु विवरण नहीं है. This is not to be just taken only for eschatology or teaching the second coming of the Lord. और इस भाग को यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, केवल यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का विवरण या तो अंतिम दिन का घटनाओं का विवरण के रूप में केवल उसी के लिए ही नहीं लेना. We need to understand that several portions here are meant to emphasize the spiritual warfare that his true disciples will be called to face in these days. क्योंकि उसमें ये जो पढ़े हुए भागों में Yes. कुछ बिंदुएं कुछ बातें ऐसी है Yes. यीशु मसीह के सच्चे चेले लोग उनके जीवन को आने वाले दिनों में सामना करने वाले और आत्मिक युद्ध का विवरण भी दिया गया है. Meant to emphasize the warfare in the spirit in perilous times that the disciples would be called to face in all generations. Some of these portions are meant to emphasize the warfare in the spirit which would take place in perilous times in all generations. और ये इस भागों के अंदर उसका विवरण भी है जो आत्मिक वातावरण में जो यीशु मसीह की चेलों के जीवन में या जीवन में अर्थात सब पीढ़ियों में सब युग में यीशु मसीह की चेलों के जीवन में आत्मिक युद्ध का सामना करने का विवरण भी है. It's a grave mistake that many attribute or take these scriptures only to interpret the second coming of the Lord. और ये बड़ा गलत बात है, ये केवल सारी बातों को केवल यीशु मसीह की द्वितीय आगमन के से संबंध में रखना. They see it only in the light of the second coming of the Lord Jesus. और क्योंकि बहुत लोग जो है इसको यीशु मसीह का द्वितीय आगमन की प्रकाश में ही देखते हैं. But that's a mistake, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो एक गलत बात There है. are several spiritual emphasis or counsels and instructions which would help the people of God
in this spiritual warfare we are called to face in these days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के सच्चे और चेलों ने हमारे दिनों में और हम सामना करने वाले उस आत्मिक युद्ध में हम कैसा सामना करना, कैसा उस पर जयवंत होना, इन बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो निर्देश दिया है, कुछ सलाह दिया है, ये इसमें भरा हुआ है। And then when we turn to chapter 18, it's actually a continuation. और लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसी का और आगे बढ़ने वाली बात है। And we read in verse 1, and he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. और 18 अध्याय उसका पहला पद में यीशु ने एक दृष्टांत दिया, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। The Amplified it says, also Jesus told them a parable to the effect that they ought always to pray and not to turn coward, faint, lose heart and give up. और यीशु ये भी एक दृष्टांत में कहा है कि और हमेशा प्रार्थना में रहना, Yes. और प्रार्थना से न छोड़ना या डरपोक नहीं होना या प्रार्थना बिना करते हुए निराश नहीं होना या हियाव नहीं छोड़ना या बिल्कुल हताश नहीं होना, ये सारी बातें ये एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा। The Lord, instructed his disciples that they are to really watch and pray. यीशु मसीह ने अपने चेलों को Yes. और विशेष रूप से कहा है, प्रार्थना करते जागते रहना। He said always pray. और हमेशा नित्य प्रार्थना करना और जागते Men रहना। always ought to pray और मनुष्य जो है नित्य प्रार्थना करते रहना and not to faint in this calling. और इस बुलाहट में हियाव न छोड़ना। In this spiritual warfare that we have come into. जो जिस आत्मिक युद्ध में हम आ चुका है, उसमें मैं और आप हियाव न The छोड़ना। counsel and the instruction to his disciples, even in this generation, is to pray and not to lose heart. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस घड़ी पर, इस पीढ़ी पर, इस युग में यीशु मसीह की ओर से यीशु मसीह के चेलों के लिए यही निर्देश और सलाह है, और वे नित्य प्रार्थना करते रहें और इस आत्मिक युद्ध में उन लोग हियाव ना छोड़ें। And what are we to pray, saints of God? और हमने क्या प्रार्थना करना Well, परमेश्वर? we all know how to pray, हम सब जानते हैं कैसा प्रार्थना करना। but that is not the prayer the Lord is talking about here. और परंतु वो प्रार्थना के विषय पर यीशु इधर बयान नहीं कर रहा है। This praying is not to be centered around or centered on our needs. और ये जो प्रार्थना, नित्य प्रार्थना में लगे रहना, यीशु ने इस मतलब से नहीं कहा कि हमारे आवश्यकताओं को प्रभु के सामने हम प्रार्थना में उपस्थित करते हैं। This prayer is not praying for our hardships. या हमारे जो तंगी हाल का दूर होने के लिए जो प्रार्थना करते हैं, ऐसा प्रार्थना नहीं होना। This prayer is not praying for our wants. Our wants, जो needs. हमारे इच्छाओं को, हमारे कामनाओं को या हमारे आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना के विषय नहीं This है। prayer is not prayer for our friends and our beloved ones and our loved ones. हमारे प्रिय लोगों को या हमारे मित्रों के लिए प्रार्थना की बात इधर नहीं कर रहा। This is something different, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये दूसरी एक अलग बात है। Today, prayer is a great subject among God's people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में प्रार्थना एक महान विषय बन गया। Everywhere, prayer letters and prayer circulars. और हर एक जगह पर और प्रार्थना की पत्र, प्रार्थना की बुलेटिन, प्रार्थना की ये जर्नल, ये सब होते आ रहा है। And when you talk about prayer, it sounds like we are such a spiritual people given to such a great cause, in the name of the Lord. और क्योंकि ये प्रार्थना का शिक्षा इस प्रकार दिया जा रहा है कि हम प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए, इसलिए हम बहुत प्रार्थना में रहने वाला, प्रार्थना करने वाले लोग हैं कहकर ऐसी बातों पर प्रस्तुत कर रहा है। But much of all the prayers that are going on today is centering around the welfare of man, saints of God. उसके प्रिय लोगों, इन दिनों में जितना भी प्रार्थना सभाओं में प्रार्थना हो रहा है, उन प्रार्थना का
केंद्र जो है केवल मनुष्यों की केंद्र रखकर कर रहा है। मनुष्यों की आवश्यकता, मनुष्यों की और सुरक्षा, मनुष्यों की कुशलता के लिए प्रार्थना किया जा रहा But the Lord Jesus is saying here है। परंतु प्रभु यीशु मसीह इधर यह कह रहा है that we must be circumspect in our praying. हमारे प्रार्थना में हम जागृत रहना है। That is, we must see all things in the light of God's full purpose in Christ Jesus. हम हर एक बातों को प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का वो पूर्ण उद्देश्य है उसकी प्रकाश में हम देखना। We must see all things in the light of God's full purpose in Christ. That is the kind of prayer that the Lord is wanting his disciples to pray. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु ने किस प्रकार की क्या प्रार्थना अपने चेले लोग क्या प्रार्थना के लिए निर्देश दे रहा है, अर्थात चेले लोग जो है मसीह में जो परमेश्वर की उद्देश्य की जो पूरा संपूर्ण उद्देश्य की प्रकाश में देखना है, समस्त बातों को वो संपूर्ण और उसके उद्देश्य का प्रकाश में देखना है कहकर उनको ये प्रार्थना के रूप में उन्हें बता रहा है। We must be circumspect in our praying. हमारे प्रार्थना में हम सतर्क और जागृत रहना। We must see all things in the light of God's full purpose in the Son, the Lord Jesus Christ. परमेश्वर के प्रिय लोगों, समस्त बातों को हमारे जीवन की सामने आने वाले या हम देखने वाले समस्त बातों को हम परमेश्वर का जो मसीह में जो उद्देश्य है उसकी प्रकाश में मैं और आप देखना। When we look at the Greek word used for prayer here, और इधर जो प्रार्थना नित्य प्रार्थना करना है, प्रार्थना का जो मूल यूनान भाषा का जब हम देखें तो now that's very, very encouraging to see that. और इन बातों को देखने से हम बहुत उत्साहित पाएंगे। It means to pray prayers that bring about God's end through his ways. और That's what it means. और उस बात के लिए वो प्रार्थना करना है, अर्थात प्रभु परमेश्वर का मार्ग में प्रभु का उद्देश्य की परिपूर्णता। I would say that again. फिर एक बार कहूंगा, It means to pray prayer that brings about God's end through God's ways. और परमेश्वर की तरीका से How deep that word is, saints of परमेश्वर God. की कारण का संपूर्णता के लिए परमेश्वर की कार्य पूरा होने के लिए ये प्रार्थना में प्रार्थना करना। Who prays that kind of prayer today? इन दिनों में ऐसी प्रार्थना कौन प्रार्थना कर रहा है? But this is the instruction that God would like to give to his disciples in this generation. और इस पीढ़ी में भी परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों को प्रार्थना के विषय पर यही निर्देश देना चाह रहा है। We are to pray always और हम नित्य प्रार्थना करते रहना and not to faint, saints of God. हम हियाव ना छोड़ना। परमेश्वर के In this hour, we are called to contend for the faith. We are to pray prayers that would bring about God's end in God's ways. परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि That's the kind of people we ought to be in these days. ये इस विश्वास के लिए पूरा यत्न करने के लिए हम वही प्रार्थना करना है जो हमारी प्रार्थना का विषय वही होना है जो परमेश्वर के मार्ग में परमेश्वर की काम का पूर्णता के लिए प्रार्थना करना है। The Lord Jesus is instructing his disciples, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये निर्देश दे रहा था, telling them it is necessary to pray. और ये कहने लगा नित्य प्रार्थना करना आवश्यक है। They are to be watchful. और उन लोग जागते रहना। They need to be circumspect in their lives. और उन लोग सतर्कता से रहना। They must be attentive. और बहुत ध्यान से रहना। They need to be alert. और बहुत सतर्कता से रहना। And ready in every season. Oh, let us climb the hills of Zion to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. Oh, let us climb the hills of Zion to the city of the living God, for the ark of the testimonies in your midst. Oh, let us climb the hills of Zion to the city of the living God, to the city of
God, to the city of the living God. Oh, let us climb the hills of Zion, to the city of the living God, for the ark of the testimonies in her midst. Oh, let us climb the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. Oh, let us climb the hills of Zion, to the city of the living God, for the ark of the testimonies in her midst. Oh, let us climb the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. Oh, let us climb the hills of Zion, to the city of the living God, for the ark of the testimonies in her midst. For the ark of the testimonies in her midst. For the ark of the